اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is how to distinguish between fact and opinion. What is the difference between a fact and opinion? عزیز طلبہ و طالبات، آج ہمارا موضوع فیکٹ اور اوپینین کے فرق کو جاننا ہے. Dear students, today we are going to discuss what is a fact and what is an opinion. If the reader is able to distinguish between facts and opinions in a text while he or she is reading for the purpose of comprehension, he can very easily reach the real meaning of the writer, that is, the message of the writer. Hence, it will be very helpful in comprehension of the given text. This kind of practice is indeed a part of in-depth reading, that is, intensive reading. عزیز طلبہ و طالبات، یہ حقیقت کو اوپینین سے، رائے سے الگ کرنا، سنٹینسز کو دو حصوں میں تقسیم کر کے جب ہم کمپریہنشن کے نقطہ نظر سے کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو ہم وہاں سب سے پہلے جو ہے گہرائی میں اتر کر ان ڈیپتھ ریڈنگ کرتے ہوئے، سکیننگ اور سکمنگ کی مدد لیتے ہوئے ہم حقائق کو رائے سے مختلف کرتے ہیں، فرق ان میں رکھتے ہیں، انڈر لائن کرتے چلے جاتے ہیں جو حقائق ہوتے ہیں. ان کو ہم نے کی سینٹینسز کا نام دیا تھا. آپ کو یاد آنا چاہیے شروع میں ریڈنگ کے مختلف حصوں کے درمیان یہ جو کی پوائنٹس ہیں یہ اصل میں در حقیقت فیکٹس ہوتے ہیں جنہیں تلاش کرنا جو ہے وہ کمپریہنشن کی بنیادی ضرورت ہے تاکہ ہم مصنف کے جو اس کا نقطہ نظر ہے، اس کا جو میسج ہے، اس کو جو ہے وہ جان سکیں، اس کو صحیح طرح سے پہچان کر کمپریہنشن کے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو جائیں. تو جب ہم رائٹر کے حقیقی پیغام کو جان لیں گے، پہچان لیں گے ڈسٹنگوش کرتے ہوئے فیکٹس اور اوپینینز کے اندر، تو پھر جو ہے وہ ہمارا کمپریہنشن کا عمل جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. تو یہ جو ہے پریکٹس جو ہے در حقیقت انٹینسو ریڈنگ کا ایک حصہ ہوتی ہے. گویا اب آپ عملی طور پر جو ہے وہ کمپریہنشن کے عمل میں شامل ہو گئے ہیں اور یہاں آپ بہت ہی تنقیدی نظر سے حقائق اور رائے جو ہے ان دونوں کو اس طرح کے سنٹینسز کو پوری تحریر میں سے، ایک پیراگراف ہے تو ایک پیراگراف میں سے، دو پیراگراف ہیں تو دو پیراگرافز میں سے. تو آئیے جانتے ہیں کہ حقائق اور رائے جو ہے ان میں کیا فرق ہے. Dear students, distinguishing between fact and opinion is a very delicate process. Here, in the given text which we are facing while reading for comprehension purposes, the facts and opinions are integrated into the very texture of that writing. We have to dig out the facts from the core of that writing. Two of them are standing side by side. They are interlinked, intertwined, but they are standing poles apart as well. One fact is standing away from another opinion in the same sequence or same line. Being able to discern the difference between fact and opinion will help your evaluation of the reliability and usefulness of texts you encounter while comprehending. Critical thinking is the best possible way of determining which statements are facts and which statements are opinions. It may seem at first that the differences are easy to see, easy to find, easy to locate. However, not everything is as black and white as it first seems. عزیز طلبہ و طالبات، جب ہم حقائق کو رائے سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہری طور پر جو ہے یہ بہت آسان کام نظر آتا ہے کہ بھئی حقائق کو ہم جلدی سے جو ہے وہ ڈھونڈ لیں گے اور اوپینینز کو نظر انداز کرتے چلے جائیں گے. کمپریہنشن یہی کہتی ہے کہ وی ہیو ٹو اگنور
opinions given in the text and we have to stick to the facts जो मेन पॉइंट्स हैं हमारे। तो बेटे ये अगरचे जो है वो बहुत आसान दिखता है, लेकिन दर हकीकत ये बहुत ही नाजुक काम होता है, क्योंकि ये फैक्ट्स और ओपिनियंस जो हैं इंटीग्रेट किए गए होते हैं एक टेक्स्ट के अंदर। दे आर इंटरलिंक्ड, इंटरट्वाइंड टू ईच अदर एंड वन अनदर हेयर एंड देयर। तो हमें इनको जो है वो एक दूसरे से सेपरेट करना, डिफ्रेंशिएट करना जो है वो उसमें हमारी क्रिटिकल थिंकिंग जो है, तनकीदी नज़र जिसे हम कहते हैं, तनकीदी नुक्ता नज़र से जब हम पढ़ेंगे तो तब हम इस काबिल होंगे कि हम हक़ाइक़ को तलाश कर पाएँ। Dear students, let's define what is a fact in a writing. A fact is something which can be verified with evidence. For example, when we say the river which flows through London is called the Thames. अजीज़ तलबा व तालिबात, जब हम हकीकत, फैक्ट, ट्रुथ जिसे आप कहते हैं, उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं कि एक हकीकत, एक सच्चाई, एक सदाकत जो है, एक ऐसी बात है, एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसको किसी शहादत के ज़रिए परखा जा सकता है। कोई एक शहादत जो है उसके सपोर्ट में जो है वो पेश की जा सकती है। जैसे यहाँ एक मिसाल सिर्फ रखी गई है आपको सिर्फ समझाने के लिए कि वो दरिया जो लंदन के ऐन दरमियान में से बहता है उसे दरियाए टेम्स कहा जाता है। तो इसकी शहादत मौजूद है कि ये दरिया वहाँ पाया जाता है। जैसे अगर हम यूँ कहें कि दरियाए रावी जो है लाहौर के करीब से बहता है, तो इसके पीछे एक सदाकत, एक एविडेंस, एक शहादत मौजूद है, तो हम कहेंगे कि भाई ये एक फैक्ट है, एक सदाकत है। ऐसा बयान, ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी बात, ऐसा जुमला, ऐसी फ्रेज़ जिसे हम किसी शहादत के ज़रिए से साबित कर सकें, विच कैन बी प्रूव्ड, विच कैन बी प्रूवन थ्रू एन एविडेंस। ए फैक्ट इज़ ए स्टेटमेंट, रिमेंबर प्लीज़, ए फैक्ट इज़ ए स्टेटमेंट विच कैन बी प्रूवन थ्रू सम काइंड ऑफ एविडेंस। तो बेटे ऐसा बयान, ऐसा जुमला, ऐसी तहरीर जिसे हम किसी एविडेंस से, किसी शहादत के ज़रिए से, ठोस शहादत के ज़रिए से साबित कर सकें, उसे हम हकीकत, ट्रुथ कहेंगे। Dear students, now the question arises, what is an opinion? An opinion is based on belief and viewpoint. Opinions are often personal interpretations and cannot be verified with evidence. For example, summer evenings are nicer than winter evenings. Opinions are often, though not always, preceded with terms such as I think, or with adjectives, comparatives and superlatives such as good, very good, better, the best, etc. अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अभी हमने देखा कि हक़ाइक़ जो हैं या हकीकत जो है, फैक्ट जो है, वो एविडेंस से प्रूव हो जाने वाले बयान का नाम है, जबकि एक राय जो है, एक ओपिनियन जो है, वो हमारे एतक़ादात, हमारे नुक्ता नज़र जिसे हम कहते हैं, हमारा विज़न ऑफ लाइफ, हमारा जनरल नॉलेज जो है, उस पर बेस करता है। गोया ओपिनियन जो हैं अक्सर जो है वो हमारी ज़ाती तशरीहात, तौज़ीहात पर मबनी होते हैं और इनको किसी शहादत के ज़रिए से साबित नहीं किया जा सकता। ये आर्गूमेंटेटिव तो होते हैं बट दे आर नॉट सपोर्टेड विद एविडेंस। जैसे कि यहाँ एक जुमले की मिसाल दी गई है कि अगर हम ये कंपेयर करें कि भाई समर इवनिंग्स जो हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं विंटर इवनिंग्स के मुकाबले में, तो ये एक राय है जो मुख्तलिफ भी हो सकती है। किसी दूसरे शख्स को विंटर इवनिंग्स अच्छी लग सकती हैं समर इवनिंग्स की बजाय। तो अक्सर जो है बेटे ये जो ओपिनियंस होते हैं ये शुरू में इनके आई थिंक, आई थिंक के अल्फाज या इस तरह से उसमें जुमले में आपको वेरी गुड, गुड कंपैरिजंस मिलेंगे, सुपरलेटिव्स के ज़रिए से कंपेयर किया गया होगा, कहीं कोई एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया होगा, एडवर्ब्स इस्तेमाल किए गए होंगे। तो
ये अक्सर ऐसे जुमलों की बनावट होती है, लेकिन कभी कभी इसके बगैर भी जो है वो कंपैरिजन्स के बगैर भी ये ओपिनियंस जो हैं वो पेश कर दिए जाते हैं। तो जैसे हम अक्सर जो है वो एक दूसरे के बारे में एक राय बना लेते हैं कि जैसे तलबा नहीं, हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो कह देते हैं क्लासेस में एक दूसरे से ऐसे, ये सलीम रज़ा कोई अच्छा टीचर नहीं है ऐसे। तो ये क्या है, ये एक राय है। हो सकता है कोई दूसरे तालिब इल्म जो हैं उसी क्लास के वो कहें कि नहीं नहीं ठीक है भाई, गुजारा कर लेता है। चले एक और तालिब इल्म जो है वो हो सकता है ये कहे नहीं नहीं भाई अच्छे टीचर हैं, एक और जो है वो कहेंगे नहीं नहीं भाई वो बहुत अच्छे टीचर हैं। तो ये सब क्या हैं, दीज आर ओपिनियंस। आप एक किताब आपको बहुत अच्छी लगती है, आप कहते हैं दिस इज़ अ वेरी गुड बुक आई हैव रेड। एक और तालिब इल्म जो है उसे वो किताब अच्छी नहीं लगती है तो वो कहेगा नो दिस इज़ नॉट अ गुड बुक। तो ये बेटे क्या हैं, ये ओपिनियंस हैं। ये हम कैसे पहचानते हैं, देखें अभी हमें फ़र्क का पता चल गया है कि भाई एक जो फैक्ट है इट इज़ ऑलवेज सपोर्टेड विद एविडेंस। कोई ना कोई उस जुमले के अंदर ही कोई ना कोई शहादत मौजूद होती है जिससे हम पहचान जाते हैं कि ये भी हकीकत है। जबकि ओपिनियन जो है वो अपने अंदर चीज़ें तो बहुत रखती है, उसमें बहुत एम्बेलिशमेंट्स होती हैं, लेकिन उसके अंदर कोई आपको एविडेंस नहीं मिलती है कि आप उसको कह सकें कि ये सदाकत के करीब कोई चीज़ है। तो एक राय जो है दर हकीकत हमारे ज़ाती ज़िंदगी की जो तशरीहात हैं, जो हमारे नुक्ता है नज़र हैं, उनको पेश करने का नाम है। यानी हर शख्स की राय दूसरे शख्स से, आपको पता है किसी भी एक शख्स की राय दूसरे शख्स से नहीं मिलती होती, मुख्तलिफ होती है। तो दिस इज़ कॉल्ड ओपिनियन और व्यू पॉइंट और पर्सनल इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग। Dear students, remember that opinions vary from man to man, from person to person. याद रखें बेटे, ओपिनियन जो हैं वो एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ, हर फ़र्द अपना एक नज़रिया, अपना एक ख़्याल, अपना एक तसव्वुर रखता है जिसे हम उसकी राय शुमार करते हैं। Dear students, there is given a simple flow chart on this section, on this slide. Please go through it with your own help to understand how to differentiate between fact and opinions. Quite often, writers use opinions and facts interchangeably. This is no a new thing for you. Critical thinking skills can help us, the reader indeed, distinguish between facts and opinions quickly and easily. बेटे बाज़ औक़ात लिखने वाला जो है वो हक़ाइक़ और राय को आपस में तब्दीली के साथ, यानी कहीं हमें हकीकत जो है वो ओपिनियन लगेगी और ओपिनियन जो है वो हकीकत लगेगी। लेकिन ये जो क्रिटिकल थिंकिंग है, तनकीदी नज़र से किसी तहरीर को देखना जो है वो हमें इस काबिल बना देता है कि हम ये फ़र्क जो है राय में और हकीकत में उसको पहचानने में कामयाब हो जाते हैं। तो दिस इज़ ए फ्लो चार्ट फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड एंड गो थ्रू। Dear students, here are some other examples of facts to clarify the idea what a fact is, what a truth is. Number one, the earth is round. This is a fact. Summer follows spring. This is a fact. The World Cup 2010 took place in South Africa. This is the World Cup of soccer, football. The British winter of 2009 and 10 was the coldest for 30 years. This is also a fact, geographical fact, geological fact. तो बेटे यहाँ कुछ मिसालें जो हैं मज़ीद हक़ाइक़ को आप तक पहुँचाने के लिए, जैसे दास्तान स्टेशनरी हम कह देते हैं, तो ये एक हकीकत है जो चेंज नहीं है, साइंसी सदाकत है जिसे आप कहते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ। सम सेंटेंसेस, सम of the statements carry universal truths which cannot be changed.
تو کوئی ایسے جملے بھی آپ کو سامنے ملتے ہیں تحریر میں جو سائنسی حقائق ہوتے ہیں، یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں، آفاقی صداقتیں ہوتی ہیں، کوئی پرووربز ہوتے ہیں، دے کین ناٹ بی چینجڈ، دے آر پروون بائی ایویڈینس، تو ان کی کوئی نہ کوئی شہادت ہوتی ہے. جیسے دیکھیں یہ دا ارتھ از راؤنڈ، سائنس اس کو ثابت کرتی ہے. تو سمر کے بعد سپرنگ آتی ہے، اس کا بھی ہمیں پتہ ہے. یہ آلموسٹ ایوری ویئر، ہر ریجن میں یہی سائیکلنگ ہے موسموں کی، کہ سمر کے بعد سپرنگ ہوتی ہے. تو بیٹے یہ چاند حقائق کی جو ہیں مزید مثالیں ہیں کہ فیکٹس ہوتے کیا ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس، دیر آر سم ایگزامپلز آف اوپینینس ٹیکن فرام جرنل لائف. جیسے آئی تھنک دیٹ راک میوزک از آفل. دس از اے اسٹیٹمنٹ. آئی تھنک سے اسٹارٹ ہوا جملہ. دا لیگل ایج فار ڈرنکنگ شوڈ بی لوورڈ ٹو 16. مختلف ملکوں میں شراب نوشی کی حد جو ہے وہ 18 سال ہے، کہ 18 سال سے پہلے آپ ڈرنکنگ نہیں کر سکتے پبلک پلیس پہ. تو یہ ایک اوپینین ہے کہ لیگل ایج جو ہے وہ گھٹا کر 16 کر دی جائے. یہ یعنی لا نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے، یہ ایک اوپینین ہے. لندن از دا بیسٹ سٹی ان دا ورلڈ. جو وہاں رہنے والے ہیں ظاہر ہے وہ اسے بیسٹ کہیں گے، ہم کہیں گے گوجرا از دی بیسٹ سٹی ان دا ورلڈ. تو یہ رائے ہے. جیسے اگر ہم یہ کہہ دیں پیپسی از مچ بیٹر دین کوکو کولا، تو ایسے یہ ایک رائے ہے. کسی کو کوکو کولا اچھی نہیں لگتی ہے تو وہ کچھ اور کہے گا. ایسے ٹو ڈے سیمز ہاٹر دین یسٹرڈے، دیکھیں یہ بھی ایک اوپینین ہے. لیکن اگر آپ غور کریں کہ اگر اس جملے کو ٹو ڈے سیمز ہاٹر دین یسٹرڈے اگر ہم اس کو ایویڈنس کے ساتھ پیش کرتے کہ بھئی آج درجہ حرارت جو ہے وہ 42 ہے، تو کل جو ہے وہ 40 تھا، تو یہ پھر جو تھا وہ حقیقت بن جاتی. ابھی یہ رائے ہی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ ایویڈنس موجود نہیں ہے. اٹ از جسٹ این اوپینین، فیلنگ پر مبنی ایک سینٹینس ہے. Dear students, as we have already noted that it is very hard for the readers, it is very difficult for the readers to distinguish between opinions and facts. Sometimes they are interchangeable, sometimes they are confusing, sometimes they are intertwined, and that is very hard to separate them, make them different. Indeed, opinions and facts are not always easily identifiable and separable. It takes a lot of practice, a lot of time to distinguish between opinions and facts. More practice makes you, as it is said that practice makes a man perfect. When you practice this skill of distinguishing between facts and opinions time and again, you are able to get the goal of differentiating these two things in a given text. Dear students, the next 3-4 pages are designed to make you familiar with how to distinguish between fact and opinion. An example of 3 kinds of sentences has been taken here, and it is now up to you to classify these statements as facts or opinions. بیٹے یہاں 3 جملے لیے گئے ہیں اور آپ کی پریکٹس کے لیے کہ آپ کو تھوڑا اندازہ ہو کہ بھئی کیسے یہ کلاسیفیکیشن کرتے ہیں، ہم ڈسٹنگوش کرتے ہیں، کیسے ڈیفرنس کرتے ہیں فیکٹ اور اوپینین میں. تو یہ جملے جو ہیں آپ کو آگے ان کی کلیریفیکیشن بھی ملے گی. وہ ان جملوں کی مزید یہ 4-5 جملے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ بھئی ہم کلاسیفائی کر کے کیسے جو ہے ہم حقیقت کو اوپینین سے الگ کر سکتے ہیں. جیسے دیکھیں یو آر اسٹڈیئنگ ایٹ اے یونیورسٹی، یو آر اسٹڈیئنگ ایٹ اے گڈ یونیورسٹی، اٹ از ون آف دا بیسٹ ان لنڈن. کوئین میری از اے بیٹر یونیورسٹی دین برونل اینڈ روہمپٹن. ورلڈ مارشے از دا بیسٹ کیفے آن دا مائل اینڈ کیمپس. یہ بیٹے چند جملے ہیں جن کی تشریح جو ہے آپ کی سہولت کے لیے آگے کر دی گئی ہے کہ آپ ان میں سے حقائق
کو राय से अलग करें. Dear student, just take the first sentence, please. You are studying at a university. You are reading material which is only available on Queen Mary's intranet site. Therefore, you must be a student at Queen Mary. This statement may be called a fact that you are studying at a university. You are studying at Queen Mary University. जैसे आप कह देते हैं आई एम ए स्टूडेंट ऑफ गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज गोजरा, तो इट इज़ अ फैक्ट. तो इसको हम, चूँकि इसकी एविडेंस मौजूद है, आप एक रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो ये सूरत है हकीकत को पहचानने की. डियर स्टूडेंट्स, नो देयर इज़ ए लॉन्गर एक्सप्लेनेशन ऑफ डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द फैक्ट एंड द ओपिनियन. अब बेटे यहाँ बहुत ही तशरीह के साथ जो है ये इसको समझाने की कोशिश की गई है कि भाई इस तरह का अगर सेंटेंस आए तो हम उसको कैसे एवेल्यूएट करेंगे, कैसे क्लासीफाई करेंगे. यू आर स्टडीइंग एट अ गुड यूनिवर्सिटी. अब देखें ये एक हकीकत भी हो सकती है. ये कन्फ्यूजन क्यों होता है हमें कि गुड यूनिवर्सिटी, हम कैसे अंदाज़ा करेंगे कि यूनिवर्सिटी गुड है? उसकी रैंकिंग से. जो उसकी रैंकिंग है, उसका आउटपुट है, उसके नताइज हैं, उसका सिलेबस है, उसके हिसाब से हम उसको दूसरी यूनिवर्सिटी से ज़हनी तौर पर, अगर हमारा प्रायर नॉलेज मौजूद है हमारे पास, तो हम उसको कंपेयर करके कहेंगे कि ये भाई जो स्टेटमेंट है, ये जो जुमला है, यू आर स्टडीइंग एट अ गुड यूनिवर्सिटी, ये एक हकीकत है, दुरुस्त है. और लेकिन दूसरी तरफ अगर हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है पहले से, यानी हमारा प्रायर नॉलेज, हमें नहीं पता है कि इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, ये यूनिवर्सिटी वाकई अच्छी है पढ़ाई में, सिलेबस के अतबार से दूसरी यूनिवर्सिटी से, तो ये एक हमारे लिए जो है ये एक महज एक राय ही रहेगी. अगेन द नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन लंदन और द सिटी. ये भी बेटे दोनों तरह से एक हकीकत भी हो सकती है और ओपिनियन भी हो सकता है कि ये बेस्ट क्वीन मैरी कॉलेज या क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी जो है लंदन की बेस्ट यूनिवर्सिटी है इस लिहाज से, सिलेबस के अतबार से, अपनी रैंकिंग में, अपने आउटपुट के लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से. तो अगर तो ये वाकई जो है वो टॉप पर है तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये एक हकीकत है. और अगर ये ऐसा नहीं है, हमारे पास एविडेंस मौजूद नहीं है, तो ये एक सिर्फ ओपिनियन है, राय है. देन द कंपैरेटिव सेंटेंस ऑफ कंपेयरिंग क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी टू ब्रुनाइल एंड रोहैम्पटन यूनिवर्सिटीज़ is again a confusing sentence because this sentence can be called a fact or opinion. अजीज़ तलबा और तालिबात, ये फिर जो है ये सेंटेंस जो है ये हकीकत भी है, हो सकता है, और एक राय भी हो सकता है, based on our prior knowledge, based on the rankings of the universities, based on the other facts of life. ज़िंदगी के दूसरे हक़ाइक़ जो हैं उनकी तरफ रिफ़र करते हुए हम इसका जब तनकीदी जायज़ा लेंगे क्रिटिकल थिंकिंग के ज़रिए से, तो तब हम इस जुमले की सदाकत तक पहुँचेंगे कि क्या ये जुमला एक फैक्ट है या ओपिनियन है. अगेन द सेंटेंस वर्ल्ड मार्शे इज़ द बेस्ट कैफ़े ऑन द माइल एंड कैंपस इन क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी. इट कैन लुक लाइक an opinion because it has given a comparative statement in it. इसके अंदर तकाबली जायज़ा है बेटे जुमले में, तो ज़ाहरी तौर पर ये एक ओपिनियन दिखाई देता है. तो लेकिन अगर हम इसके स्टैटिस्टिकल डाटा को इकट्ठा करें, सारे कैफ़ेज़ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ के, वहाँ की क्वालिटी, क्वांटिटी, सब कुछ जो है उसको कंपेयर करें दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के साथ, और हमारे पास इतना वक्त हो कि एक जुमले की तशरीह के लिए इतना लंबा चौड़ा जो है रिसर्च वर्क करें, तो फिर ये एक जो है वो हम इसको जो है वो फैक्ट भी कह सकते हैं, अगर ये सच साबित हो तो, कि ये कैफ़े वाकई जो है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के कैफ़ेज़ के मुकाबले में एक बेहतर कैफ़े है. डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट फैक्ट्स कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियन एंड बायस, especially in the media and in some research projects, especially
qualitative research, that is, even facts presented as facts are not always completely objective and sacred as once claimed. अजीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ इस हकीकत का इजहार किया गया है कि हक़ाइक़ जो हैं उन पर हमारा जो हमारी आँख का और हमारे ज़हन का जो तअस्सुब है, हमारे अंदर का जो तअस्सुब है, असबियत है, हमारी जो प्रिजुडिस है, वो हमारी जो अपनी राय चलें कह लें, हमारा जो अपना नुक्ता नज़र है, बाज़ औक़ात वो हक़ाइक़ को मसख़ कर देता है। जैसे आप देखते हैं अखबारात में, मीडिया में बहुत से हक़ाइक़ को मसख़ करके पेश किया जाता है। और जैसे देखें, मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया में ARY अगर आप देखें तो ऐसे लगता है जैसे आप कोई मज़ाहिया न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई सच्ची खबर आपको नहीं मिलेगी। एग्जैजुरेट करके पेश करेंगे और वन साइडेड न्यूज़ पेश करेंगे, बैलेंस्ड व्यू के साथ फैक्ट्स को पेश नहीं करेंगे, बायस के साथ, तासुब के साथ, एक तरफ़ा तासुब के साथ खबरों को पेश करेंगे। लेकिन अगर आप जो है वो थोड़ा CNN की तरफ चले जाएं, BBC की तरफ चले जाएं, तो आपको जो है वो कुछ बैलेंस याद रखें। मीडिया हाउसेस जो हैं वो हमेशा अपनी एक ऐनक रखते हैं और अपनी ही ऐनक से जो है वो देखते हैं। हक़ाइक़ को मसख़ करने का नाम ही असल में मीडिया है। तो ये जब तक ये चिकनी चुपड़ी बातें नहीं करेंगे तो इनकी तरफ ध्यान कौन देगा। तो इसलिए ये जो तासुवात होते हैं ख़ास तौर पर मीडिया में, ये हमारे हक़ाइक़ को जो है वो बाज़ औक़ात मुतासर करते हैं और राय बनाने में भी जो है वो, तो ये कहा जा सकता है कि ये हक़ाइक़ जो होते हैं दे आर नॉट ऑलवेज़ द सेम, दे आर नॉट ऑलवेज़ द सेक्रेड वंस, दे मे चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। हक़ाइक़ भी तब्दील होते रहते हैं। जैसे साइंसी हक़ाइक़ जो हैं देखें, वक्त गुज़रने के साथ साथ तहकीकात होती हैं तो बहुत सी जो है वो चीज़ें जो हैं वो दे गो अंडर चेंज, दे फेस चेंजेस। तो बेटे ये हकीकत जो है ये हमारी सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए है कि ये याद रखने की बात है कि हमारे जो ज़ाती तासुबात हैं, पर्सनल ग्रजेस हैं, प्रिजुडाइसेस हैं, एथनोसेंट्रिज़म्स हैं, वो जो हैं हमारे राय को भी मुतासर करते हैं और हक़ाइक़ को भी मुतासर करते हैं। Dear students, as a famous educationist David Edwards has put it in this way, in other words, a selector must select the facts he or she will present. In doing so, he or she is exercising a judgment about what he or she thinks is important. This is, in essence, an opinion, as it reflects the beliefs and values of the person who is writing. बेटे, एक हमारे मरूफ एजुकेशनिस्ट हैं डेविड एडवर्ड्स, उन्होंने जो है वो ओपिनियन को बड़ी अच्छी तरह से उसकी वजाहत की है कि भाई ये एक ओपिनियन जो है वो एक ऐसी जजमेंट है, एक ऐसी राय है जो हम समझते हैं कि हमारे लिए अहम है और बुनियादी तौर पर ये हमारे एतकादात और हमारी कदरों को जो है वो पर्सनल राइटिंग में जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, उसकी अक्कासी करती है, ये जो राय होती है। Dear students, again there is an opinion, there is a statement of two famous educationists, Edwards and Cromwell. तो बेटे वो इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि facts are gathered by human beings, guided by mundane, earthy, often compromised beliefs and motives. To choose this fact over that fact is already to express an opinion. To highlight this fact over that fact is to comment. ये एक और फ़लसफ़ियाना सा तसव्वुर जो है एडवर्ड्स और क्रॉमवेल ने पेश किया है कि हक़ाइक़ जो हैं उन्हें इंसान ही इकट्ठा करते हैं। तो बड़ी ही घटिया किस्म की, ज़मीनी किस्म की और अक्सर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़्ड किस्म के एतकादात और मुहर्रिकात से ये हक़ाइक़ जो हैं वो जमा किए जाते हैं। तो बाज़ औक़ात हक़ाइक़ को जमा करने में इंसान जो हैं इस हकीकत को उस हकीकत पर
जो है वो तरजीह देना शुरू कर देते हैं कि नहीं ये हकीकत जो है उस हकीकत से अच्छी है। तो ये जो है गोया तबसरे की शक्ल बन जाती है। तो जो एक ओपिनियन है बज़ाते ख़ुद, तो गोया हक़ायक़ के अंदर से जो है वो ओपिनियन भी जन्म लेते चले जाते हैं। Dear students, while this is quite a philosophical argument, it is good to be aware that bias can influence even the most objective pieces of information. बेटे जैसे कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया है कि तासुब जो है हमारे इंतहाई अहम मालूमात को भी जो है बाज़ औक़ात हक़ायक़ जिन्हें हम कहते हैं उनको मसख़ कर देता है, उनको तरोड़ मरोड़ देता है और हमें पता नहीं चलता है। वी आर कन्फ्यूज़्ड कि इसमें हकीकत क्या है और राय क्या है। तो अगर हम तअस्सुब की ऐनक उतार कर किसी चीज़ को देखेंगे तो देन वी विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फैक्ट एंड ओपिनियन। Dear students, coming to the final word in our today's session, we may say that facts are supported by evidence, while opinions are based on views and statements. It needs great practice to be able to distinguish between fact and opinion. तो बेटे अपने आज के सेशन का इख्तिताम करते हुए हम ये कह सकते हैं कि भाई हक़ायक़ जो हैं, ट्रूथ्स जो हैं, हमेशा किसी शहादत के ज़रिए से साबित किए जा सकते हैं, जबकि जो राय होती है वो हमारे ज़ाती ख़यालात, ज़ाती तसव्वुरात और बयानात पर मुश्तमिल होती है। तो हमें जो है वो इस कॉम्प्रिहेंशन के इस अमल में हक़ायक़ को राय से अलग करने के लिए हमें बहुत सख्त मेहनत की और एफ़र्ट की, फ़ोर्स की ज़रूरत होती है कि हम ये प्रैक्टिस जो है इसको कॉन्टीन्यूसली जो है वो जारी रखें, तो तब जाकर जो है वो हम इसमें कामयाबी हासिल करते हैं। इंशाल्लाह अगले सेशंस में हम बाकायदा अमली तौर पर इसकी जो है वो कुछ एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो कंडक्ट करेंगे। तो फिर जो है वो ये तसव्वुर कि हकीकत को राय से कैसे अलग करना है वो और भी वाज़ेह होती चली जाएगी। Thank you very much everybody for participating in this session. Till the next session, it is Allah Hafiz. Thank you very much again.